Here I am going to teach you one topic from class 11 IP, that is emerging trends artificial intelligence in detail with all the basic concepts of CBSE. So I will deal with the basic things which are there in the chapter, like what are the domains of AI. I will explain about I will explain about computer vision, then what is AI. Then here I have written, see what is AI. You know that artificial intelligence is the ability of a machine to mimic human behavior. Means we want to create a robot which act exactly just like a human, and it used to do the complex task. Why do somebody has discovered about robots and artificial intelligence? Because they want to simplify their work. So if anybody, anything or any machine will reduce the complex task, then it will be a benefit for the human being. So AI system uses logic, decision tree and machine learning to learn, reason and solve problem. How AI is becoming smarter? We know that we are nowadays we are searching with chat gpt. So we are giving instruction after instruction to chat gpt, and after that when we give three instruction, then after that when we will ask again the another question, then we will get the response automatically, because we have already given the question to it. Means we have already trained the chat gpt. How AI works, AI काम कैसे करता है? AI system can work with structured, semi structured and unstructured data, any kind of data, where your data is structured या semi structured है या unstructured है. AI system uses logic and decision tree to learn, reason and self correct. AI system, जो भी AI system है वो पहले सीखता है, फिर reason करता है. Reason means reasoning whether the thing is correct or not, और फिर वो उससे self correct करता है. AI system can interpret and sort data at scale, solve complicated problem. AI क्या करता है? Complicated problem को solve करता है and automate various tasks simultaneously. Now, one domain of AI is machine learning. What is machine learning? A branch of AI that uses algorithm and statistical model to correlate data. मशीन लर्निंग में हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पढ़ते हैं जो मशीन को ट्रेन करते हैं. मीन्स for example, we give some instruction to chat gpt. Means we are training a chat gpt. We can understand it as when the robots were not included with AI, then those robots were working with sensors and actuators. Now robots are working with AI, means they are becoming self-smart. We have the example of Sophia, who is a robot. Sophia is a robot, is an anchor who can understand 150 language. नाउ एआई वर्क जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स. एआई को इसी तरह से बनाया गया रोबोट्स को कि वो ह्यूमन को मिमिक कर सके. तो जैसे ह्यूमन में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे एआई में न्यूरल नेटवर्क होता है. अ मेथड इन एआई दैट टीचेस कंप्यूटर्स टू प्रोसेस डेटा इन अ वे दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन. एआई का एक मेथड जो कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करता है जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन. Now we have the next concept, which is deep learning, a type of machine learning that uses artificial neural network to learn from data. जो भी डेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बिग डेटा का कॉन्सेप्ट. व्हाट इज़ बिग डेटा? बिग डेटा में हम बहुत सारे डेटा अपलोड करते हैं. एवरी डे वी कैन सी दैट ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा इज़ बीइंग अपलोडेड. बहुत सारे इमेज अपलोड होते हैं, मैसेज सेंड होते हैं. तो इस डेटा को फिल्टर करना, अकोमोडेट करना, एनालाइज करना इज़ बिग डेटा. तो उस बिग डेटा में को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करता है, दैट इज़ डीप लर्निंग. नाउ एआई का एक टाइप है विच इज़ कॉल्ड जनरेटिव एआई. मतलब ये जनरेट करता है. अ टाइप ऑफ एआई दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट एंड आइडिया. एआई जो नया कंटेंट और आइडिया क्रिएट करता है, लाइक इमेज एंड वीडियो. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, branch of AI that focus on giving computer the ability to understand human language. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक एआई का ब्रांच है जो ह्यूमन लैंग्वेज लाइक व्हाट इज़
NLP, natural language processing means NLP. NLP क्या करता है? It uses the part of speech of your sentence, then convert the sentence from your dialect to the another dialect जिसमें आप translate करना चाहते हैं. AI has a wide scope of application and can be a useful counterpart to people in everyday life. You can see this is NLP. This is a chart of NLP कि NLP क्या करता है. टेक्स्ट इनपुट एंड डेटा कलेक्शन, जैसे हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट करते हैं, दैट इज़ द वर्क ऑफ NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. हमारे लैंग्वेज को प्रोसेस करना. व्हाट इंस्ट्रक्शन वी वांट फ्रॉम आवर कंप्यूटर. टेक्स्ट प्रोसेसिंग, हम क्या टेक्स्ट देते हैं. टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, फीचर सेलेक्शन, आइट्रेशन एंड इम्प्रूवमेंट. Iteration means repetition of loop again and again. Evaluation and optimization, फिर हमारे डेटा को इवेल्युएट करता है. बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन फिर हमें रिकरेक्ट करने की ऑप्टिमाइजेशन देता है. मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड इंटरफेरेंस और मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. कौन सा मॉडल, मतलब मैंने आपको बताया एल्गोरिदम, कौन सा एल्गोरिदम को सिलेक्ट करना है टू ट्रेन अ मशीन. दैट इज़ द वर्क ऑफ NLP. नाउ NLP टास्क, NLP क्या करता है. स्पीच रिकॉग्नाइज करता है. जैसे समटाइम्स वी हैव सीन दैट चैट GPT इज़ आंसरिंग इन हिंदी ऑल्सो. आजकल हिंदी में भी आंसर करता है. तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच टैगिंग, वर्ड सेंस डिसएम्बिगेंस एंड नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन. जैसे हम पार्टिकुलर नेम को फीड करेंगे. आई वॉन्ट आर्म फोर्सेस, तो आर्म फोर्सेस का नेम को रिकॉग्नाइज करेगा. Then we have co-reference resolution. Then we have natural language generation. Now what is natural language processing in detail? Understand the meaning, being able to extract the meaning from text, speech or other form of human language. हम जब extract करते हैं meaning from text, speech or other form of language, that is NLP. Analyze structure, recognize the grammatical structure and syntax of a language, including the part of speech and sentence construction. मैंने आपको बोला जैसे if I'll say कि गूगल ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इनटू दिस फॉर्म, तो वो क्या करेगा, वो मेरे लैंग्वेज से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेलेक्ट करेगा. वर्ब नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, और दूसरे लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच में या फिर दूसरे लैंग्वेज के डायलेक्ट में कन्वर्ट करेगा. मतलब वो उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करेगा. नाउ जनरेटिंग ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग टेक्स्ट टू स्पीच दैट इज नेचुरल, कोहेरेंट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट. नाउ द मीनिंग ऑफ NLP. NLP का मतलब क्या होता है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो विच इज़ फैसिनेटिंग एंड रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड दैट इंटरसेक्ट कंप्यूटर. NLP फोकस करता है इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स और ह्यूमन लैंग्वेज. हम देखते हैं कि जब हम चैट GPT में टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं तो ह्यूमन लैंग्वेज होता है. इनेबलिंग मशीन टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, कि मशीन क्या करे, हमारे लैंग्वेज को मिमिक करे, अंडरस्टैंड करे, उसे समझे. इंटरप्रेट मतलब इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड. इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्रामिंग में लाइन बाय लाइन एरर डिटेक्ट करता है. तो ये क्या करेगा, हमारे लाइन बाय लाइन मैसेज को समझेगा और जनरेट करेगा ह्यूमन लैंग्वेज इन अ वे दैट इज़ बोथ मीनिंगफुल एंड यूजफुल, कि वो मीनिंगफुल भी हो और यूजफुल भी हो. हाउ रूल बेस्ड सिस्टम वर्क. AI का एक फीचर है विच इज़ कॉल्ड रूल बेस्ड सिस्टम. These system function like complex translation dictionary और on steroids. अब हम ज़रूरी तो नहीं है कि we want to translate only easy things, sometimes we want to translate complex things also. Linguistic meticulously crafted a massive set of rules that capture the grammatical structure and vocabulary of specific language. We don't know, हर कोई हर लैंग्वेज नहीं जानता. जैसे अगर हम जाएं कि we want to convert in Tamil और Telugu, we want to convert in French और Spanish, then क्या होगा, वो सारे लैंग्वेज का वोकेबलरी और स्पेसिफिक लैंग्वेज को किस तरह क्राफ्ट करेगा, उसके सिंटेक्स की कैसे एनालिसिस करेगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा. तो सारे रूल्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का रूल होता है. इमेजिन द रूल एज ए रेसिपी ऑफ ट्रांसलेशन. ये रूल क्या है, रेसिपी ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन कैसे होगा, पहला चीज़ है फर्स्ट रूल इज सेंटेंस ब्रेक थ्रू. Sentence breakdown. What is sentence breakdown? The system would first analyze the source language.
सेंटेंस एंड ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस क्या करता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, वो पहले एनालाइज करेगा किस टाइप का सेंटेंस है, फिर उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेगा, कौन कौन नाउन है, कौन वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद वो मैचिंग करेगा। मैचिंग रूल्स क्या है, ईच वर्ड और फ्रेज वुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रूल बेस्ड टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट इन द टारगेट लैंग्वेज। हर वर्ड या फ्रेज को मैच किया जाएगा जिस दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है उसके इक्विवेलेंट लैंग्वेज में। अब कंसीडरिंग ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब जैसे हम हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं, तो जब हिंदी का ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश का ग्रामर भी समझ में आ जाता है और फिर हम मैचिंग करके समझ जाते हैं। बट व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा बिकॉज वी आर नॉट नोइंग ऑल द लैंग्वेज। अब उसके बाद पहला हो गया सेंटेंस ब्रेकडाउन, उसने ब्रेकडाउन कर दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फिर मैचिंग रूल, फिर उसने मैच किया कि कौन कौन सा फ्रेज मैच कर रहा है दूसरे लैंग्वेज पर। थर्ड है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मीन्स फाइनली फाइनली द सिस्टम वुड finally the system would use the rule to rearrange the translated word. Finally सिस्टम यूज़ करेगा रूट टू रीअरेंज द ट्रांसलेटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। फाइनली वो क्या करेगा, वो एक ऐसा फ्रेज़ बनाएगा कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो एनएलपी तीन फेजेस में काम करता है। जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं तो हम एक रूल यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड रूल बेस्ड सिस्टम, जिसमें वो पहले सेंटेंस को ब्रेक डाउन करता है, फिर मैचिंग रूल फॉलो करता है, फिर उसको रीअरेंज करता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TFIDE? Term frequency and inverse document frequency. What is meant by a dictionary in LLP? डिक्शनरी क्या होता है, वी नो इन पाइथन डिक्शनरी मतलब की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी इन एनएलपी मीन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स occurring in the corpus. If some words are repeated in different document, they are all written just once as while creating the dictionary. जैसे डिक्शनरी में अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वो रिपीटेशन को एलिमिनेट करके उसको एक ही बार राइट कराएगा, दैट इज़ डिक्शनरी रूल। What is the term frequency? Term frequency is the frequency of a word in a document. एक वर्ड एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार आता है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी of the word. Term frequency can easily be found from the document vector table. Term frequency एक document vector table है जिससे हम निकाल सकते हैं कि कौन सा word कितनी बार एक sentence में आ रहा है। As in that table we mention the frequency of each word of the vocabulary in each document. Which package is used for natural language processing in Python programming? पाइथन प्रोग्रामिंग में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होता है? नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। कौन सा पैकेज यूज़ होता है? नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, NLTK. NLTK is one of the leading platform for building Python program that can work with human language data. What is document vector table? तो डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल क्या होता है? Document vector table is used while implementing bag of words algorithm. डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल काम करता है जब हम बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अब बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम क्या होता है? इन अ डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल द हेडर रो कंटेन द vocabulary of the corpus and the other row correspond to different document. If the document contain a particular word, it is represented by 1 and absence of word, it is represented by 0. It's just like the truth table. अगर कुछ सही है तो 1 और अगर कोई गलत है तो 0. और डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल एक टेबल है containing the frequency of each word of the vocabulary in each document. Now you can see NLP. NLP में we have text, we have videos, we have audios. Natural language processing ये तीनों को convert करता है। ये convert करता है text को भी, video को भी, audio को भी। अब ये क्या करता है? रो लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है, एंटिटी एक्सट्रैक्शन करता है, रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन, टॉपिक क्लासिफिकेशन और फिर सेंटिमेंट एनालिसिस। मतलब इतने फेज होते हैं थ्रू विच वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। हाउ NLP वर्क्स? द मशीन अ ह्यूमन टॉक टू द मशीन। पहले कोई इंस्ट्रक्शन देता है, द मशीन कैप्चर द ऑडियो, फिर मशीन उस ऑडियो को कैप्चर करता है
ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्शन टेक्स प्लेस। ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्शन होता है, द मशीन प्रोसेस द टेक्स्ट डेटा, मशीन उस टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा टू ऑडियो कन्वर्सन होता है और मशीन रिस्पॉन्ड विद द ऑडियो टेक्स्ट। ना मैंने बताया था जैसे हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है जिससे हम फील करते हैं कि वी आर देयर इज समथिंग हैपनिंग इन आवर बॉडी, लाइक वी आर फीलिंग कोल्ड, वी आर फीलिंग हॉट, वी आर फीलिंग सम itching and allergy and all. Just like that we have neural network. The neural models have revolutionized the field of NLP by leveraging deep learning technique to create more sophisticated and accurate language model. न्यूरल मॉडल्स ने क्या किया, डीप लर्निंग को एक नया हाइट दिया। उसने क्या किया, मोर सोफिस्टिकेटेड और एक्यूरेट लैंग्वेज मॉडल क्रिएट किया। दीज मॉडल इंक्लूड रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क जिसको RNN बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। Now chatbots. Chatbot is also an application of AI. A chatbot is a computer program that designed to simulate human conversation through voice commands or text chats or both. चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है कि वो ह्यूमन कन्वर्सेशन को करे। वॉइस कमांड्स भी कभी हमें मिलते हैं, कभी हमें टेक्स्ट चैट्स मिलते हैं। जैसे समटाइम्स व्हेन वी विजिट अ न्यू स्कूल टू फाइंड आउट अबाउट द स्कूल, देन वी आर गेटिंग अ चैटबॉट एंड which is asking what do you want, then we used to write that I want to find out about the school, then it gives us the next command. So we have some example of chatbot, that is Mitsu bot, Jabberwocky. What is a chatbot? A chatbot is a computer program that can learn over time how to best interact with humans. Chatbot एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सीख गया है कि कैसे बेस्ट वे में हम वो ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सकता है। कैसे? अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, मशीन लर्निंग से। इट कैन आंसर क्वेश्चन एंड ट्रबल शूट कस्टमर प्रॉब्लम, इवेल्युएट एंड क्वालिफाई प्रोस्पेक्ट, जनरेट सेल्स लीड एंड इंक्रीज सेल्स ऑन एन ई-कॉमर्स साइट। चैटबॉट इतने सारे काम कर सकता है। क्या क्या? वो कस्टमर प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकता है, इवेल्युएट एंड क्वालिफाई कर सकता है प्रॉस्पेक्ट्स, जनरेट कर सकता है सेल्स लीड्स और इंक्रीज कर सकता है सेल्स किसका? ई-कॉमर्स साइट का। नाउ व्हाट इज़ अ चैटबॉट? ये हमने पढ़ा। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू कंडक्ट एन ऑनलाइन चैट कन्वर्सेशन जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट होता है। स्टैटिस्टिकल रिवॉल्यूशन 1980 से 1990 में आया। अ शिफ्ट टुवर्ड स्टैटिस्टिक्स 1980s में सो अ पैराडिग्म शिफ्ट टुवर्ड स्टैटिस्टिकल NLP अप्रोच। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इमर्जेस हुए इसी एरा में 1980 से 1990 में। द पावर ऑफ डेटा, लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डेटा जिसको कॉर्पोरा बोलते हैं बिकम क्रूशियल फॉर ट्रेनिंग दी स्टैटिस्टिकल मॉडल। और इन स्टैटिस्टिकल मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत पड़ने लगी। लर्निंग फ्रॉम पैटर्न, अब ये क्या करते हैं? पैटर्न से सीखते हैं। अनलाइक रूल बेस्ड सिस्टम, स्टैटिस्टिकल मॉडल लर्न फ्रॉम पैटर्न अलाउिंग देम टू हैंडल वेरिएशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। नाउ डीप लर्निंग एरा, उसके बाद 2000 में और अभी तक डीप लर्निंग एरा चल रहा है। डीप लर्निंग में क्या है? एरा ऑफ डीप लर्निंग जहाँ पे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एडवांस आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दीज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारा जो न्यूरॉन्स होता है तो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को सेम कॉपी किया गया है। बिकेम द फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग एडवांसमेंट, एडवांस आर्किटेक्चर। Deep learning architecture like recurrent neural network and transformers further enhance NLP capability. Briefly mention these architecture without going into technical details. अब रूल बेस्ड सिस्टम का इन्वेंशन कब हुआ? 1960 से 1970 में। रूल बेस्ड सिस्टम a collaboration among linguistic and computer scientists but precipitated development of structure। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर GPS आया। फिर ये GPS डेवलप किया, किसने डेवलप किया? एलन न्यूवेल, हर्बर्ट ए सिमोन ने 1957 में। GPS वॉजंट एक्सप्लिसिटली डिज़ाइन, GPS पूरी तरह डिज़ाइन नहीं हुआ था बट ये रूल बेस्ड सिस्टम में काम कर रहा था।
व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पस? अभी एक टर्म आया कॉर्पस। कॉर्पस क्या होता है? इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वी अंडरगो सेवरल स्टेप्स टू नॉर्मलाइज द टेक्स्ट। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में हम बहुत सारे फेजेस में जाते हैं, कैसे टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करें टू अ लोअर लेवल। That is, we will be working on a text from multiple document, and the term used for the whole textual data from all the document altogether is known as corpus. हम लोग टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे स्टेप्स में जाते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट से, तो फिर हम क्या करते हैं, यूज़ फॉर द होल टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस। या फिर कॉर्पस क्या है? लार्ज एंड स्ट्रक्चर सेट ऑफ मशीन रीडेबल टेक्स्ट है, वैसा टेक्स्ट जिसको मशीन पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस इन अ नेचुरल कम्युनिकेटिव सेटिंग्स. So students, till this topic I have explained, I hope you have understood basics or few of the deep insights about artificial intelligence and deep learning, rule-based system, chatbots, neural network, how NLP works, how NLP process the data. So these things you can assess yourself about these things, about how have you learned or not, what is natural language processing, natural language processing क्या काम करता है, AI के कौन कौन से टाइप्स है. तो these are emerging trends which are there in class 11 IP. Thank you very much. Have a nice day.